Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome to you all in my Shri Ram Public School online classes. Now in this chapter financial management, we are going to do the last topic, that is factors affecting the working capital requirement. Okay, so student, be ready, let's start. So let's see what is working capital. Apart from the investment in fixed assets, every business organization need to invest in current assets. Student, the current asset, that asset which we are using in our daily activity. This is investment facilitates smooth day-to-day operation of the business. A current asset are usually more liquid but contribute less to the profit than the fixed assets. For example, the current asset in order to their liquidity are as under: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल रिसीवेबल, डेटर, फिनिश गुड्स। यानी कि ये सारी क्या हैं चीज़ें क्या हैं पता है, ये वो एसेट्स हैं जिनसे हम इमीडिएटली कैश कन्वर्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द फिक्स एसेट्स, बट the profit which we generated from the asset is lesser in a working capital as compared to the fixed capital. ठीक है, these assets are noted earlier as expected to get converted into the cash or a cash equivalent. यानी इनको हम कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कैश के इक्वल वैल्यू वाले किसी भी सिक्योरिटीज़ में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। विद इन 1 ईयर इनका मैच्योरिटी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट। दिस प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस। यानी यहाँ पे जब भी बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इमीडिएटली इन सिक्योरिटीज़, इन एसेट्स के थ्रू कैश में कन्वर्जन ईजिली कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द फिक्स एसेट. If it can be converted into cash quicker and without reduction in the value, insufficient investment in current assets may make it more difficult for an organization to meet its payment obligation. However, these assets provide a little or a low returns. Hence, a balance need to be struck between the liquidity and profitability. अब यहाँ होता क्या कर रहे हैं, करंट एसेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं. लिक्विड होने का मतलब ये होता है कि इनका कैश कन्वर्जन स्पीड ज़्यादा होता है और इनके थ्रू पैसे कम कन्वर्ट होते, प्रॉफिट कम जनरेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फिक्स एसेट. ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि बिज़नेस को स्मूथली रन करने के लिए आपको जो है प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को बैलेंस में मेंटेन करना है. अब स्टूडेंट आप ये कहेंगे कि मैम क्या दोनों 50-50 होना चाहिए, तो इट इज़ नॉट सो. It's depend on the nature of your business, the right cycle of your business, what operation and what the scale of business organization doing their activities. ठीक है, तो अगर आपके बिजनेस में लिक्विडिटी कम होगी तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तब भी प्रॉब्लम हो जाएगा. तो आपको इन दोनों को बैलेंस करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को फुलफिल करना है. Current liability are those payment obligation which are due for a payment within 1 year, such as bill payable, creditor, outsourcing, outstanding expense and advance received from customer etc. अब ये करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, ये एक तरह का खर्चा है. ठीक है, एक तरह की लाइबिलिटीज़ होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसका पीरियड लेस देन 1 ईयर है. यानी कि यहाँ पे आप जो भी पेमेंट आपको करना है ना वो विद इन 1 ईयर करना है. यानी यहाँ पे वो ड्यूज़ हम जनरेट करते हैं जिनका रीपेमेंट 1 साल के अंदर अंदर हो, नॉट अ मोर देन 1 ईयर. सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटी. क्लियर. सम पार्ट ऑफ द करंट एसेट इज यूजुअली फाइनेंस थ्रू द शॉर्ट टर्म सोर्स लाइक current liability. The rest is financed through the long term source and is called net working capital. Thus a net working capital यानी कि current assets minus current liability, जो बचेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, working capital. और net working capital may be defined an excess of current asset over a current liability. Now we are going to see the factors affecting the वर्किंग कैपिटल. फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस. सिंपल है, आपको मैंने कल के लेक्चर में ऑलरेडी बताया है. नेचर ऑफ बिजनेस में हमारे पास 2 नेचर के होते हैं, एक ट्रेडिंग एक्टिविटी वाले और एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. द बेसिक नेचर ऑफ द बिजनेस इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन usually need a smaller amount of the working capital compared to the manufacturing organization. This is because there is usually no processing, therefore there is no distinction between the raw material and the finished goods.
Sales can be effected immediately upon the receipt of the material, sometimes even before that. In a manufacturing business, however, raw material needs to be converted into finished goods before. यानी सिंपल है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी हमें कम लगता है. रीज़न उसका क्या होता है पता है स्टूडेंट? गुड्स खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, यही एक्टिविटीज़ होती है. तो जितना करंट एसेट्स हम जनरेट कर रहे हैं उतनी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, फिर उसको फुलफिल कर रहे हैं, एसेट हो रहा है, लाइबिलिटी हो रही है, तो ये चलते रहते हैं आपस में. ठीक है, तो इसीलिए ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में कम लगते हैं. लेकिन अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी हाई लगता है. उसका रीज़न ये है कि ऐसे बिजनेस में हम लोग जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करते हैं उसको कुछ टाइम के लिए प्रोसेस करते हैं, फिर उसका कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिर वो जब मार्केट में सेल होता है तो हमें वहाँ से पेमेंट मिलता है. ये सारी एक्टिविटी एक दिन दो दिन में नहीं होती, बल्कि मे बी 2 मंथ 3 मंथ, डिपेंड ऑन द गुड्स नेचर, राइट. सो लेकिन विद इन 1 ईयर के अंदर ही हो जाती है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में वर्किंग कैपिटल भी हाई लगता है और ट्रेडिंग में भी. ठीक है. नेक्स्ट, सिमिलरली सर्विस इंडस्ट्री विच यूजुअली डू नॉट हैव एंड मेंटेन इन्वेंटरी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. ठीक. नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन. फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट ऑन हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन द क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री एंड द data required is generally high. Such organization therefore require large amount of working capital. अब ये क्या कह रहे हैं, जो स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जैसे लोकल लेवल, रीजनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो जितना हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी का होगा उतना ही हाई रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का होगा. और जितना लो रेंज में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलेगी जैसे लोकल रीजनल लेवल पे, उतना कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है. Such organizations therefore require a large amount of the working capital as compared to the organization which operate on the lower scale. Business cycle. Different phase of the business cycle affect the requirement of the working capital by the firm. In case of the boom, the sales as well as the production are likely to be a larger and therefore the larger amount of the working capital is required. यानी जब बूम पीरियड होता है तो उस टाइम में डिमांड हाई होती है, डिमांड हाई होती है तो प्रोडक्शन हाई करना पड़ता है, प्रोडक्शन हाई करने के लिए रॉ मटेरियल डेटर्स को हाई क्रिएट करना पड़ता है. इसीलिए कहा गया है कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बूम पीरियड में चलता है, बूम साइकिलिंग में होता है, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है एंड वाइस वर्सा. नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर. मोस्ट ऑफ द बिजनेस हैव सम सीजनली इन देयर ऑपरेशन. In a peak season, because of the higher level of activity, a larger amount of working capital is required. As again this, the level of activity as well as the requirement of the working capital will be lower during the लीन सीजन. सिंपल है, जो सीजनल आइटम्स होते हैं जैसे अम्ब्रेला हो गया, वुलन क्लोथ्स हो गए, विंटर क्लोथ्स हो गए, तो ये ना पर्टिकुलर सीजन वाइज डिमांड होते हैं. तो जब इनका डिमांड हाई होता है पर्टिकुलर सीजन में तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई होती है. और जैसे इनके सीज़न ऑफ हो जाते हैं तो उनका डिमांड भी कम होता है, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. ठीक. नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल. अ प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पेंड बिटवीन द रिसिप ऑफ रॉ मटेरियल टू कन्वर्जन इनटू द फिनिश्ड गुड्स. सम ऑफ द बिजनेस हैव अ लार्जर प्रोडक्शन साइकिल व्हाइल सम हैव द शॉर्टर वन. ड्यूरेशन एंड द लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द फंड रिक्वायर फॉर अ रॉ मटेरियल्स एंड एक्सपेंसेस. Consequently, working capital requirement is higher in firm with a longer processing. सिंपल है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो गुड्स रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, उनके कन्वर्जन में होने के बाद जो फाइनल गुड्स बनेगा उसमें जो टाइम पीरियड लगता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल. यानी जो गुड्स कन्वर्जन बहुत इजीली होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिनका प्रोसेस बहुत छोटा है, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल रेस रिक्वायर्ड एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे जहाँ टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल, एक साइकिल बनाने में और एक मर्सिडीज़ बनाने में टाइम सेम तो नहीं लगेगा ना, ऑब्वियसली टाइम अलग अलग होगा, राइट. तो उसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो भी अलग अलग होंगे. तो इसी वह कंपेयर किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो साइकिल में रिक्वायर्ड है वो लेसर एज़ कम्पेयर टू द मर्सिडीज़ कार. क्लियर हुआ. नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड. अ डिफरेंट फर्म अलाउड डिफरेंट क्रेडिट टर्म टू देयर कस्टमर. This depend upon the level of the competition and that of the firm phase as well as the credit worthiness of their client. A liberal credit policy result in higher amount of the debtor, increasing the requirement of the working capital. ठीक है. यानी कि जो हम लोग उधार में देते हैं, क्रेडिट पे सेल करते हैं ना, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कस्टमर. और कस्टमर हमारे डेटर्स होते हैं.
तो उनका जितना हाई टाइम पीरियड होगा रिटर्न लेने का, ठीक है, उतना ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी। दूसरा है क्रेडिट अवेल। ये जस्ट क्रेडिट अलाउड का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। जैसे हम कस्टमर को क्रेडिट अलाउड करते हैं, वैसे हमारे जो सप्लायर होते हैं उनसे हमें क्रेडिट अवेल होता है। तो ये भी डिपेंड करता है, देखिए कैसे, जस्ट एज अ फर्म अलाउड द क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, इट ऑल्सो मे गेट द क्रेडिट फ्रॉम इट्स सप्लायर। To the extent it the credit on purchase, the working capital requirement is reduced। सिंपल है, हमने कोई गुड्स खरीदा, ठीक है, रॉ मटेरियल या कुछ और, तो उस टाइम पे हमें इमीडिएट पेमेंट करना होता है। लेकिन मान लीजिए हम इमीडिएट नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा करंट लाइबिलिटी क्रिएट होता है, ठीक। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमें जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है अगर हमें क्रेडिट अलाउड अवेल मिल जाता है तो, क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अ फर्म मैनेज देयर ऑपरेशन विथ वेरी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, अ फर्म मैनेजिंग इट्स रॉ मटेरियल एफिशिएंटली मे बी एबल टू मैनेज विथ अ स्मॉलर बैलेंस। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सिमिलरली, अ बेटर डेटर turnover ratio may achieve the reducing amount tie up in receivables. Better sales effort may reduce the average time for which the finished goods inventory is held. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यानी कि जो भी आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशनल एक्टिविटी और रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको कितनी एफिशिएंटली कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी एफिशिएंसी हाई है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल लेस रिक्वायर्ड एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे आपकी एफिशिएंसी बहुत पुअर है, ठीक है। Such efficiency may reduce the level of the raw material, finished goods and debtors including in resulting in lower requirement of working capital. Availability of the raw material. Sometimes क्या होता है पता है, कुछ ऐसे भी फाइनल गुड्स होते हैं जिनका रॉ मटेरियल हमें जल्दी नहीं मिलता, जो सीजन बेस्ड होता है, ठीक है। If the raw material and the other required material are available freely and continuously, lower stock level may be required, due to which what happen, the working capital requirement is also get reduced। अगर आपके पास रॉ मटेरियल जो आप खरीदते हैं फाइनल गुड्स बनाने के लिए वो हमेशा अवेलेबल है फ्रॉम द मार्केट, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू द अपोजिट वन, right? In addition, the time lag between the placement of the order and the actual receipt of material is also relevant। इतना ही नहीं बल्कि आपने जो गुड्स यानी जो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए ऑर्डर दिया और जब भी आपको वो गुड्स परचेस हुआ उसके बीच का जो टाइम गैप है वो भी कंसिडर किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, growth prospectus। If the firm growth potential of a concern is perceived to be higher, it will be require a larger amount of working capital so that it is able to meet higher production and sales target whenever required। क्या कह रहे हैं, अगर growth prospectus आपको लगता है कि in future there is a chances of the growth and development, so there is a lot of working capital also required। Next, level of competition। Higher the level of competitive may necessitate a larger stock of finished goods, which means that there should be high working capital and vice versa। दिस इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल, यानी अगर आपका कंपटीशन बहुत हाई है तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल भी बहुत ज़्यादा रखनी होगी, गुड्स रेडी करके रखने होंगे ताकि कॉम्पिटिटर के साथ आप उस फेयर कंपटीशन को फेस ऑफ कर सकें। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। विद द राइजिंग प्राइस द लार्जर अमाउंट आर रिक्वायर्ड इवन टू मेंटेन द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेल्स, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस दस बिकम हायर। यानी जब भी इन्फ्लेशन होगा तो उस टाइम पे गुड्स की डिमांड ना बहुत हाई हो जाती है, इवन इन द प्राइस इंक्रीजेस, बट स्टिल द कस्टमर आर गोइंग टू डिमांड मोर एंड मोर ऑफ द गुड्स। So what happen, there is a lot of demand in the market, and to fulfill that demand the production unit need a huge amount of the working capital so that they can be able to easily protect the business firm, right? यानी कि अगर महंगाई हो रही है तो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अब डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक। तो मे बी उस टाइम पे कैश ना हो तो हम क्रेडिट पे लेंगे तो क्रेडिटर्स भी क्रिएट होंगे। तो जब हम अपने बिजनेस एक्टिविटी की सारी चीज़ें ले आते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो जब इन्फ्लेशन होता है तो डिमांड हाई होती है, ठीक है। उस हाई डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा रखना होता है ताकि हम किसी भी कस्टमर को गेट बैक नहीं कर सकते हैं कि वो बिना सामान लिए ही चला जाए।
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है. So today we stop here only. I hope so you understood my lecture. If you having any kind of the doubt, student, so you can be ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care. One more thing, if you understand my whole lecture, so please like, share, subscribe, and comment on my YouTube channel. Jai Hind, everyone.